गरम एकदम मिक्स करत नाही का? चलो लॅपटॉप आणि बॅग खाली ऑफिसमध्ये ठेवून दे. लॅपटॉप चालू करून ठेव. डब्बा पण आहे. Shall we start? Good morning, friends. Let's go ahead. We understood under oblique over absorption of overheads and we also linked it to standard costing. Standard costing में से we did variable overheads. Today we have to take a job of fixed overheads. Little complicated. So, chalo, before we begin up, let's do warm up and have quick recap of what we did. So I said to link the overheads to output, first we go on a basis of budgeted data. So we estimate overheads, then we link overheads to the respective department cost allocation. Then common overheads are apportioned to the various departments. Hello. Huh. So we did cost allocation, cost apportionment, then reapportionment. So it is a primary plus secondary distribution. Multiple methods of reapportionment we did. And then finally we went on to understand absorption. So whatever overheads are there in the production department are going to be absorbed by output. So the photo खींच के रखिए, कुछ तो गड़बड़ है. Control C कर. Just a second, public. Just a sec. Notepad type कर. A word pad. So, listen up. So there is absorption. Whatever output is produced in a production department needs to be absorbed by output. Output that we have produced. Correct? So we found out a suitable absorption rate. Absorption rate is nothing but standard rate. इसी absorption rate को हम overhead chapter में जाके क्या बोलते हैं बच्चों? Standard rate of recovery. अब ये absorption rate जो है वो either per unit हो सकता है या per hour हो सकता है. याद रखना. So उससे हमने absorbed overhead निकाले थे. Step number 6 था मेरे हिसाब से. कितना खर्च होना चाहिए था. अब absorbed overhead अगर आप आउटपुट के हिसाब से निकालोगे तो अलग फॉर्मूला है, आवर्स के हिसाब से निकालोगे तो अलग फॉर्मूला है. So absorbed overhead is basically actual output into absorption rate per unit, or it is not actual hours, it is standard hours into absorption rate. But in many questions our examiner does not give us standard hours, so we take what? Actual hours. We assume actual and standard to be
same. So then under absorption is your debit balance, over absorption is your credit balance, in which account? Overhead account. और फिर हमने उसका ट्रीटमेंट किया था in overhead chapter. In overhead chapter, treatment was from accounting angle. We understood how much is UA oblique OA from normal reasons and how much is UA oblique OA from abnormal reasons. तो नॉर्मल रीजन की वजह से जो भी अंडर ऑब्लिक ओवर अब्सॉर्प्शन था वो अनअवॉइडेबल था, प्राइस लेवल चेंजेस था, तो उसके लिए हमने क्या मेथड यूज किया? सप्लीमेंट्री रेट. सो वी फाउंड आउट एडिशनल रेट. सप्लीमेंट्री मतलब एडिशनल. सो हाउ डू कैलकुलेट सप्लीमेंट्री रेट? ओवरहेड ओवर अब्सॉर्प्शन ऑब्लिक अंडर अब्सॉर्प्शन ड्यू टू नॉर्मल रीजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड देन वी डेबिट. डेबिट कब होता है? अंडर अब्सॉर्प्शन के केस में रिस्पेक्टिव अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. और क्रेडिट विच अकाउंट? WIP अकाउंट, FG अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट. WIP अकाउंट फॉर द गुड्स दैट आर रिमेनिंग इन स्टॉक, FG अकाउंट फॉर द गुड्स दैट आर इन FG. सो ऐसा एंट्री हम पास करेंगे सप्लीमेंट्री रेट निकाल के. ओवर अब्सॉर्प्शन सॉरी अबनॉर्मल रीजन है तो डायरेक्टली कॉस्टिंग P&L को जाएगा. आर यू क्लियर? इफ अमाउंट इज स्मॉल वी कैरी इट फॉरवर्ड. देन वी अंडरस्टूड दिस फ्रॉम ओवरहेड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू. अब रिमेंबर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो वेरिएंस एनालिसिस करते हैं उसके लिए नेचर ऑफ ओवरहेड रिलेवेंट है, वेरिएबल है या फिक्स है. ओवरहेड चैप्टर में जो हमने नॉर्मल अबनॉर्मल किया उसके लिए वेरिएबल हो या फिक्स हो बाढ़ में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता हमको. तो वेरिएबल ओवरहेड के लिए हमने एनालिसिस कैसे किया? कुछ भी हो, गॉडफादर वेरिएंस दैट इज टोटल ओवरहेड वेरिएंस विल रिमेन सेम whether it is a variable overhead or it is a fixed overhead. So how do you calculate overhead cost variance? Overhead cost variance is standard cost minus actual cost. Are you clear on that? Standard cost and actual cost का difference is going to be what? Overhead cost variance. Are you clear on this? Standard cost मतलब कितना खर्च होना चाहिए था. अब वो आपके पास दो अल्टरनेटिव्स है, आवर्स बेस करो या आउटपुट बेस करो. तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट रहेगा तो उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा तुमको. मैंने मेथड बोले थे आपको, रिग्रेशन मेथड, हाई लो पॉइंट मेथड. रिग्रेशन आना चाहिए, ऐसा दिल खुश होगा ना मेरा. तुम लोगों का भी नहीं देखो विजिट नहीं. सो एनालिसिस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इन द ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स. आवर्स का फॉर्मूला यूज करना है, कर लो. SH इंटू SR. व्हाट इज SH इंटू SR? स्टैंडर्ड कॉस्ट इतना, और इन सिंपल लैंग्वेज एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इफिशिएंसी एंड एक्सपेंडिचर. इफिशिएंसी वेरिएंस इज सिंपल डिफरेंस बिटवीन आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट. इफिशिएंसी जब एनालाइज कर रहे हैं तो प्राइस लेवल चेंज एनालाइज नहीं करना है, दैट्स व्हाई वी टेक अ स्टैंडर्ड रेट. बट जब एक्सपेंडिचर एनालाइज करना है तो रेट का डिफरेंस लो. Standard rate per hour, actual rate per hour multiplied by what? Actual hours. That is the difference in rate per hour for all hours. And अगर output base हमें analyze करना है तो बच्चों actual output into standard rate, that is your absorbed overhead, minus actual output into actual rate. What is that? Actual overheads. Absorbed minus actual. Efficiency variance. It's the same formula. Standard output. What is standard output? In actual hours, how much should have been produced? See, moment word standard comes ना, आपको पूछना क्या है? How much should have been produced? और how much? समझा क्या? Standard मतलब कितना होना चाहिए था, कितना खर्च होना चाहिए था, कितना आउटपुट आना चाहिए था, कितना आवर्स लगना चाहिए था, कितना लगना चाहिए था. कितना और था कॉमन है, बीच में क्या है वो डिपेंड्स. तो स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, इनका डिफरेंस into what? Standard rate. That is going to tell you efficiency. When efficiency variance is favorable, if actual output is more than standard output, it is favorable. Common sense hai. When it is adverse, when actual output is less than what output you should have got, and expenditure variance is a difference between, ये वेरिएंस थोड़ा अलग था, स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट. दिस टेल्स यू कितना खर्च होना चाहिए था माइनस एक्चुअल ओवरहेड. दिस इज जस्ट अ प्राइस लेवल चेंज. इसमें इफिशिएंसी नहीं आया है.
अब बोलेगा कैसे इफिशियंसी नहीं आया? मैंने स्टैंडर्ड आउटपुट लिया है, मैंने एक्चुअल आउटपुट। चलो अभी हम खतरनाक चीज की शुरुआत करते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन दिस। क्या है ये खतरनाक चीज? क्या है खतरनाक चीज? फिक्स ओवरहेड। चलो हेडिंग दे दो, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड वेरिएंस करना है और कंट्रोल रेशियोज करना है। एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन ऑन आइदर ऑफ द टू दिस एग्जाम, दैट इज May 23। कंट्रोल रेशियोज आने चाहिए क्योंकि थोड़ा सा चेंज किया है इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में November 22 से। तो फिक्स ओवरहेड वेरिएंस, बच्चों कुछ भी हो, गॉड फादर फॉर्मूला विल रिमेन सेम। बट टेल मी, ये फिक्स ओवरहेड वेरिएंस डज इट वेरी विथ रेफरेंस टू आउटपुट? तुम्हारा आउटपुट ज्यादा हो गया इसलिए ज्यादा खर्च होना चाहिए क्या? ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ आउटपुट इंक्रीजेस, फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट डिक्लाइन, है ना? बट आउटपुट पे लिंक्ड है क्या ये? नहीं। चलो, लेकिन अपना फॉर्मूला जो है ना एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड का, वो एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से। देखो सबसे पहले गॉड फादर फॉर्मूला, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। गॉड फादर फॉर्मूला क्या है बच्चों? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। आर यू क्लियर? स्टैंडर्ड कॉस्ट का ओवरहेड के केस में मतलब क्या होता है? एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नथिंग बट एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। आर यू क्लियर? स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या है? कितना खर्चा होना चाहिए। आप कैसे निकाल सकते हो इसको? आउटपुट बेसिस पे निकाल सकते हो या आवर्स बेसिस पे निकाल सकते हो। लेट मी ट्राई इट ऑन आउटपुट फर्स्ट। क्या लिखूंगा आउटपुट पे मैं? पहले एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं रे गधे, एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। एक्चुअल ओवरहेड्स कैसे निकालोगे? एक्चुअल दिया रहेगा ना, माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। बट नहीं लेना है तुमको, तुमको खुजली है बहुत। हेलो, actual output into what? Actual rate per unit. You will have to calculate. Normally this multiplication is not itself directly given. Actual output into actual rate का जो multiplication है वही दिया रहता है। तो बच्चों ये कौन से बेसिस पे था? आउटपुट बेसिस पे। और फॉर्मूला एक साथ दोनों दे दो मिक्स करके? नहीं, अलग अलग करते हैं। ये कौन सा बेसिस पे चल रहा है? चलो, नो स्ट्रेस। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इनटू ब्रैकेट आउटपुट बेस्ड। कल भी मैंने ऐसे दो अलग अलग दिए थे ना, वही वही करना चाहिए। तुम्हारे लेवल परफेक्ट है। तो ये देखो आवर्स बेस लिखा था मैंने, आउटपुट बेस किधर लिखा? हाँ इधर। सी, वेरिएबल ओवरहेड में एनालिसिस बहुत इजी था। अब क्या करेंगे हम? इसके दो बच्चे पैदा करेंगे। व्हाई डू फिक्स ओवरहेड्स वेरिएंस कम अप और व्हाई डज अ फिक्स ओवरहेड वेरिएंस कम अप? सिंपल रीजन, price level which you considered at the time of budget and the price level at the time of actual overheads being incurred is different. So can there be a price level change? But वो price level quantity के हिसाब से आएगा क्या? नहीं, वो totality में रहता है। Fixed overheads are not incurred on per unit basis, they are incurred on totality. बट जब आपने बजट बनाया था तो जो आपने एस्टिमेट लगाया था फिक्स ओवरहेड का और जब एक्चुअल में खर्चा किया तब डिफरेंस हो सकता है। तो उसको हम बोलते हैं फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। देखो, दिस हैज नथिंग टू डू विथ व्हाट? क्वांटिटी। आप आउटपुट बेसिस पे करो या आवर्स बेसिस पे करो, ये फॉर्मूला सबसे सिंपल है। इज इक्वल टू बजेटेड ओवरहेड्स, ऑब्वियसली फिक्स ओवरहेड्स, बजेटेड फिक्स ओवरहेड माइनस व्हाट? एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। डिफरेंस ऑफ द टू is gonna be called as what? Fixed overhead expenditure variance. Are you clear on this? ये किसकी वजह से आया? प्राइस लेवल की वजह से आया। नाउ इट कैन बी फेवरेबल, इट कैन बी एडवर्स। फॉर एग्जांपल, इंश्योरेंस कॉस्ट इज अ फिक्स कॉस्ट। यू हैड एस्टिमेटेड अ पर्टिकुलर इंश्योरेंस अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एक्चुअल में इंश्योरेंस अमाउंट कुछ अलग आया। फिक्स ओवरहेड्स डू चेंज बिकॉज ऑफ टू रीजंस। नंबर वन, प्राइस लेवल
changes, and number 2, capacity change or a volume level change. The volume is output. आवाज नहीं है. So fixed overhead, volume variance. हाँ, सुबह सुबह ना आधे नींद में साले बेशरम गई गए. फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस. कैन आई गो अहेड? ये वॉल्यूम वेरिएंस क्यों आता है अंडरस्टैंड करो. आपने जब फिक्स ओवरहेड बजट किया था तब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कंसिडर किया होगा. लेट्स से यू कंसिडर्ड 10,000 यूनिट्स एंड योर ओवरहेड एस्टिमेट वाज 1 lakh. 1 lakh upon 10,000, 10 rupees per unit is your estimate of overheads. Actual में output can go up or output can come if output goes up from 10,000 to 15,000. Forget about the price level change. Price level change का जो impact है वो हमने already consider कर लिया लेफ्ट हैंड साइड पे. Keeping price level to be same at 1 lakh. Actual में you might have gone above 1 lakh, you might have gone below 1 lakh. That is already considered in the expenditure variance. Now, if actual output goes to 1,50,000, what happens is that same 15,000, same 1 lakh rupees gets spread over 15,000 units. Now, a simple common sense, same amount, if it is spread over more units, cost per unit is gonna come. And if output comes down, cost per unit is gonna go up. कुछ समझा गया? बट अभी ये वॉल्यूम वेरिएंस है और इसके 3 बच्चे हमें पैदा करने हैं. क्या करना है? 3 बच्चे. इसका एनालिसिस करना है. Why does your volume go up or come down? In a simple language, output. तुम्हारा आउटपुट बढ़ता क्यों है या कम क्यों होता है? 3 ब्रॉड रीजंस है. कितने रीजंस बोला मैंने? नंबर 1, तुमने बजट में प्लान किया था कि हम 25 दिन काम करेंगे एक महीने में और एक्चुअल में तुमने 27 दिन काम किया. You worked for how many days? 27 days. How many days you had planned for? 25. So you worked for 2 extra days. Forget about efficiency or anything else. 25 दिन का आपने जो प्लानिंग किया था उसकी जगह पे आप 27 दिन काम किया. आपने ज्यादा दिन काम किया तो क्या होगा? ज्यादा आउटपुट आएगा. Assuming other things being constant. 25 के जगह पे 27 दिन तुमने काम किया या 25 की जगह पे तुमने 22 दिन काम किया. नंबर ऑफ डेज फॉर विच यू प्लान्ड इनिशियली एंड नंबर ऑफ डेज फॉर विच यू एक्चुअली वर्क, कैन देयर बी डिफरेंस? तो उसको क्या बोलेंगे हम? कैलेंडर वेरिएंस. आउटपुट कैन गो अप. अब मेरे को ये वेरिएंस किसकी वजह से है? वॉल्यूम वेरिएंस इज फॉर व्हाट? आउटपुट गोइंग अप और आउटपुट कमिंग. नाउ आस्क अ क्वेश्चन. Why does output go up or why does output come down? First reason, number of days are different. समझा? Number of days are different. Number 2 reason can be efficiency is different. The efficiency with which you planned and efficiency with which you worked actually can be different. If you work more efficiently, you will produce more output. If you produce more output, it is favorable. How favorable? Because the same fixed cost gets spread over more output. So headline लिखो कहीं तो. In case of a fixed overhead, more the output, better the variance or favorable the variance. Better the variance or favorable the variance. तो बच्चों कितने रीजंस है? 3 रीजंस है. कौन से 3 रीजंस है? तुम्हारे नंबर ऑफ डेज डिफरेंट हो सकते हैं, तुम्हारा एफिशिएंसी डिफरेंट हो सकता है. याद है क्या? और क्या हो सकता है? कैपेसिटी में चेंज हो सकता है. तो ये सारा चीज करने के लिए इंस्टेड ऑफ डूइंग अ टाइम पास आपको बहुत सारा फॉर्मूला है. क्या है?
बहुत सारा फॉर्मूला है, उसको याद रखने के लिए आपको सिंपल, ये देखो बहुत सारे, अब किधर गया, एक चार्ट बना के दिया था तुमको मैंने, कंट्रोल रेशियोज है, नहीं दिया, है मिलेगा। लिसन अप टू दिस, ये वेरिएबल आ गया कंट्रोल रेशियोज। हाँ, ब्रॉडली स्पीकिंग you could achieve a better efficiency, or you could work for a better capacity. You could work with a better capacity, or you could have a better efficiency, or calendar number of days itself can be different. तो हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिक्स ओवरहेड को डिवाइड करेंगे कैलेंडर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस एंड व्हाट, एफिशिएंसी वेरिएंस। अब उसको याद कैसे रखना है, उसको याद कैसे रखना है, आपको आउटपुट बेस सिखा रहा हूं ना मैं। देखो सिंपल, आप 4 फिगर्स वर्कआउट करो। आपका ओरिजिनल बजटेड आउटपुट क्या था, व्हाट वाज योर ओरिजिनल बजट। आपने मंथ के शुरुआत में या क्वार्टर के शुरुआत में प्लानिंग किया था कि ये क्वार्टर में हम लेट्स से 75 डेज काम करेंगे इन दिस क्वार्टर। एक्चुअल में तुमने 77 काम किया होगा या 76 काम किया होगा। इफ यू बजटेड 75 डेज एंड एक्चुअल आल्सो इज आल्सो 75, then there is no calendar variance. So first find out what, original budgeted output, original budgeted, then find revised budgeted output, revised budgeted output with reference to actual number of days. I'll take one question and explain. Original budgeted output, revise कैसे कैलकुलेट करने का, देखो 75 डेज मैंने प्लानिंग किया था, मैंने प्लान किया था कि हम 2 लाख यूनिट्स बनाएंगे, 2 lakh units in 75 days. You actually work for 77 days. 2 lakh for 75. So for 77 days, how much output should have been produced? That is called as what? Revised budgeted output. If revised output is greater, variance is favorable. It is not adverse. तो फेवरेबल एडवर्स दिमाग लगा के डिसाइड करना, प्लस मतलब फेवरेबल, माइनस मतलब एडवर्स, ऐसा मत याद रखना। कोइंसिडेंटली मैंने ये फॉर्मूलाज ऐसा बनाए कि आप वैसा याद रख सकते, लेकिन डोंट डू दैट। नेक्स्ट, फिर ये पूछो स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब क्या होता है, एक्चुअल आवर्स जो काम किए उसमें कितना आउटपुट आना चाहिए था और एक्चुअल में कितना आउटपुट आया। ये 4 चीजें आपको करनी है, ORSA। इसको मेमोरी टेक्निक याद रखने के लिए ओरल रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, या और कुछ तो ऐसे ये स्टूडेंट्स ने ही बनाए हुए टेक्निक्स है, कौन था मालूम नहीं, आई डू नॉट वांट टू नो। ओरल रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, सिंपल, ये 4 फिगर्स आपको चाहिए। द मोमेंट यू गेट 4 फिगर्स, योर जॉब इज डन। पहले कौन सा वेरिएंस आता है, कैलेंडर वेरिएंस। ये कौन सा वेरिएंस आता है, कैपेसिटी वेरिएंस। एंड ये कौन सा वेरिएंस आता है, इफिशिएंसी वेरिएंस। हाउ डू यू गेट इट, सब्सिक्वेंट फिगर माइनस प्रीवियस फिगर इनटू रेट पर यूनिट। देखो अब आपको फॉर्मूलाज क्रिएट करने ना, किधर गया, नॉट दिस, लुक एट इट, ऑब्जर्व, यू डू नॉट नो फॉर्मूला, लेट्स अज्यूम इसके ब्रेकअप भी मालूम नहीं, आपने क्या करना चाहिए, चलो साइमल्टेनियसली मेरे साथ अभी फॉर्मूला क्रिएट करेंगे हम। 4 चीजें लिखनी है आपको, कौन सी 4 चीजें, आउटपुट बेस्ड फॉर्मूला है तो मेमोरी टेक्निक क्या बोला मैंने, ओरल रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो 4 चीजें आएगी उसमें। ओ इज व्हाट, ओरिजिनल बजटेड आउटपुट लिखना, ओरिजिनल बजटेड आउटपुट, ये आपका पहला आउटपुट आ गया। फिर क्या करेंगे आप, रिवाइज्ड बजटेड आउटपुट, रिवाइज्ड बजटेड आउटपुट। रिवाइज बजटेड आउटपुट किसके हिसाब से रहता है, एक्चुअल नंबर ऑफ डेज के हिसाब से रहता है ना, एक्चुअल नंबर ऑफ डेज के हिसाब से रहता है। सो OR, फिर क्या करने का है, S इज व्हाट, स्टैंडर्ड आउटपुट। Standard output is obviously with reference to which number of days, actual number of hours or days, whatever you want to say, actual number of hours के हिसाब से standard output कितना आना चाहिए था, और actual output तो देना चाहिए क्वेश्चन में। If actual output is not given, you cannot solve anything.
है ना। अब बच्चों ये वेरिएंस कौन सा है? कैलेंडर। इन दोनों का जो डिफरेंस रहता है वो कैलेंडर रहता है। ये कौन सा रहता है? कैपेसिटी। और ये कौन सा रहता है? एफिशिएंसी। सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट अ वेरिएंस, आगे जाके कंट्रोल रेशियोज निकालने हमको। कंट्रोल रेशियोज पहले बहुत सिंपल थे, अभी इंस्टीट्यूट ने बहुत कॉम्प्लिकेट किए कंट्रोल रेशियोज। कान खोल के सुनना। आपको अगर वेरिएंस निकालना है तो सब्सिक्वेंट फिगर माइनस प्रीवियस फिगर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, बिकॉज ये आउटपुट बेस्ड है। तो और टोटल, इन सब का जो टोटल है, ये कौन सा वेरिएंस है? वॉल्यूम वेरिएंस। तो वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला निकाल सकते हो क्या तुम लोग? हाँ, बहुत आराम से निकाल सकते हैं यार। कैसे निकालोगे वॉल्यूम वेरिएंस? देखो, सब्सिक्वेंट फिगर, व्हाट इज सब्सिक्वेंट फिगर? एक्चुअल आउटपुट, है ना, माइनस व्हाट इज द प्रीवियस फिगर? ओरिजिनल बजटेड आउटपुट। और इफ देर इज नो डिफरेंस इन नंबर ऑफ डेज, बच्चों, फिर यू कैन जस्ट से बजटेड आउटपुट। अरे नंबर ऑफ डेज अगर सेम ही है तो ओरिजिनल बजटेड आउटपुट एंड रिवाइज बजटेड आउटपुट विल रिमेन। लिखने के लिए मैं लिख रहा हूं ओरिजिनल बजटेड आउटपुट। ऐसा क्यों लिखा? अगर ये फिगर पॉजिटिव आया तो क्या है? फेवरेबल। ये फिगर निगेटिव आया तो एडवर्स। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों सर? कॉमन सेंस लगाओ ना। लेट्स अज्यूम योर एक्चुअल आउटपुट इज 30,000, योर बजटेड आउटपुट वाज 28,000। एक्चुअल आउटपुट इज हायर, 30 minus 28, 2,000 पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स फेवरेबल। क्यों फेवरेबल है? इफ एक्चुअल आउटपुट इज मोर, इंसिडेंस ऑफ फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट कम्स डाउन। आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस। ओ राजा सीधे आजा। हाँ, ये किसी ने तो, किसी बच्चे ने इसको, कौन बच्चा था वो मालूम नहीं मुझे, ऑनलाइन बच्चा था। ओ राजा सीधे आजा। थर्ड क्लास किड्स। सो कुछ कर नहीं सकते, जाने दो। अब इसके कितने बच्चे पैदा हो गए? 3। कौन सा पहला बच्चा? कैलेंडर वेरिएंस। दूसरा कैपेसिटी वेरिएंस। और लास्ट कितना है? इफिशिएंसी। कैलेंडर, कैपेसिटी एंड इफिशिएंसी, ये 3 अलग अलग वेरिएंसेस हम करेंगे। बहुत दिमाग, मतलब तुम्हारा प्रेशर हल्का हो जाएगा ये, और आएगा तो ये क्वेश्चन 1 में आएगा। ये वेरिएंसेस जो आता है छोटे छोटे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्वेश्चन 1 में आता है, या नहीं तो क्वेश्चन 2 10 मार्क। और नॉट डिसाइड आर यू गोइंग टू बी सीए फाइनल और इंटर अगेन। कैलेंडर वेरिएंस कैसे निकालोगे? यहां पर आ गया ना, सब्सिक्वेंट फिगर माइनस प्रीवियस फिगर। तो रिवाइज्ड बजटेड आउटपुट माइनस, बोलो, ओरिजिनल बजटेड आउटपुट इनटू व्हाट? स्टैंडर्ड रेट। वो तो सब जगह पे इनटू वाला चीज कांस्टेंट ही है। क्यों? हम वॉल्यूम वेरिएंस एनालाइज कर रहे हैं, प्राइस लेवल वेरिएंस एनालाइज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए रेट जो लेंगे हम, वो स्टैंडर्ड रेट ही लेंगे। प्राइस का जो डिफरेंस है वो हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया बच्चों। इधर इधर रे, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस में, है ना। कैलेंडर वेरिएंस समझा गया तुमको? सब्सिक्वेंट फिगर माइनस प्रीवियस फिगर। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो फेवरेबल। आप बोलेंगे कैसे? रिवाइज बजटेड आउटपुट कब ज्यादा होगा रे? व्हेन यू प्लान फॉर मोर नंबर ऑफ डेज। मैंने पहले 25 दिन प्लानिंग किया था, लेकिन एक्चुअल में हम 27 दिन काम किए। अगर 27 दिन काम किए तो रिवाइज बजटेड आउटपुट इज गोइंग टू बी मोर देन ओरिजिनल बजटेड आउटपुट। तो मतलब ये आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब फेवरेबल। कैसे फेवरेबल? ज्यादा आउटपुट आ गया तो फेवरेबल लेना। कैपेसिटी वेरिएंस, बोलो, सब्सिक्वेंट फिगर स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस प्रीवियस फिगर रिवाइज्ड बजटेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट एसआर पर यूनिट। और इफिशिएंसी के लिए क्या करूंगा मैं? एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट। If actual output is more than what output you should have got, it's favorable into what? Standard rate per unit. Are you clear with this? So it's very, very simple, yaar.
ऑनलाइन पब्लिक, आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टूड। नहा के बैठे होगे घर पे। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, ये किसके बेसिस पे किया हमने? आउटपुट बेस पे किया। टोटल वेरिएंस इज गोना बी सिंपली नथिंग बट स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। फिक्स ओवरहेड हो या वेरिएबल ओवरहेड हो, टोटल वेरिएंस का आंसर सेम है। उसके दो बच्चे जो है वो अलग अलग तरीके से हम क्रिएट करते हैं, वेरिएबल और फिक्स के लिए। वेरिएबल के लिए हमने क्या किया था? एक्सपेंडिचर वेरिएंस किया था, लेकिन वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस वाज लिंक्ड टू क्वांटिटी। देखो ना, एक्सपेंडिचर वेरिएंस वेरिएबल ओवरहेड के केस में हमने क्या किया था? एक्चुअल आउटपुट, सॉरी स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट का डिफरेंस था इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब फिक्स ओवरहेड में ऐसा आउटपुट का लिंक ही नहीं है एज फार एज अमाउंट इज कंसर्न। दैट्स व्हाई वी डिड बजटेड ओवरहेड्स एंड एक्चुअल ओवरहेड्स का डिफरेंस। क्लियर है क्या? और ये क्या किया हमने? फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का लॉजिक बोला है, समझा आपको? ORSA, चार चीजें निकालो एंड वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्रिएट करो। एंड सिंपल लॉजिक इज व्हाट? इफ माय वॉल्यूम ऑफ आउटपुट हैज गॉन अप, इट इज फेवरेबल। इफ माय वॉल्यूम ऑफ आउटपुट हैज गॉन डाउन, इट इज एडवर्स। आर यू क्लियर? अब क्या करेंगे? सेम चीज वापस करेंगे, आर्स बेस्ड। गिव द हेडिंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। एग्जाम में कुछ भी यूज करना पड़ सकता है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इनटू ब्रैकेट व्हाट? आवर्स बेस्ड। हाउ डू यू गेट इट? ओवरऑल फॉर्मूला इज गोना बी सेम। ओवरऑल फॉर्मूला इज SH into SR, स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड रेट पर आवर, मतलब उतना दिमाग लगाओ यार, नहीं तो आप स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय आवर्स इज इक्वल टू kgs। आई विल पुट पोटैटो इन योर ब्रेन। स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। समझा करे? कितने बच्चे? दो बच्चे, इसके नाम वही है, क्या नाम है इनका? फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन प्राइस लेवल। सो सिंपली हाउ डू यू गेट इट? बजटेड ओवरहेड्स माइनस व्हाट? Actual overheads. Budgeted overhead minus actual overhead. Difference is known as what? Fixed overhead expenditure variance. Right hand side. Follow. Fixed overhead volume variance. Fixed overhead volume variance. Now, I don't know. I have forgotten. So what do you do? Come down below. ऊपर हमने क्या किया था? ओरल रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रिवीजन करेंगे। छोटा सा ट्विस्ट है बच्चों, ओरल रिवीजन। ओरिजिनल बजटेड, क्या लिखेंगे बच्चों? आवर्स। ओरिजिनल बजटेड आवर्स आइडेंटिफाई करो। आप कैलकुलेट कर सकते हो ओरिजिनल बजटेड आवर्स क्या थे, फिर क्या करने का? रिवाइज्ड बजटेड आवर्स। Revised budgeted hours. Revised budgeted hours are with reference to actual number of days. Revised budgeted hours might be more, might be less. फिर AS. A is for what? Actual hours. कोई तो standard hours बोली थी। और इधर हम क्या करेंगे? Standard hours. Standard hours are for actual output. Actual output के लिए कितना टाइम लगना चाहिए था। और ऊपर जो स्टैंडर्ड आउटपुट था ना, वो क्या था? स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर्स। इन एक्चुअल आवर्स हाउ मच? सी, स्टैंडर्ड जब भी कैलकुलेट करना है ना, दिमाग सिंपल रखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। स्टैंडर्ड आउटपुट इन एक्चुअल आवर्स, तो 1 hour यू शुड हैव प्रोड्यूस दिस मच, सो टोटल एक्चुअल आवर्स आर 500। इन 500 हाउ मच यू शुड हैव प्रोड्यूस्ड? कॉमन सेंस है यार। ये क्या आ गया बच्चों? ओरल रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दिस इज फॉर आवर्स बेस्ड फॉर्मूला। बाकी सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये क्या होगा?
कैलेंडर, ये क्या होगा? कैपेसिटी, इफिशियंसी बोल रहा है, और ये रहेगा इफिशियंसी। बच्चों बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ आपको उतना स्वैप करना है। और ये क्या रहेगा? वॉल्यूम वेरिएंस। यहां से ही हम कंट्रोल रेशोज करेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन ऑन कंट्रोल रेशोज और दिस फिक्स ओवरहेड एनालिसिस। सो हमने जो ओवरहेड चैप्टर में एनालिसिस किया था दैट वाज जस्ट नॉर्मल अब नॉर्मल, उसमें हमने बाकी क्वेश्चन कुछ पूछा ही नहीं था। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि भाई व्हाई देयर इज अ एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर्ड, इज इट ड्यू टू प्राइस लेवल चेंज और इज इट ड्यू टू वॉल्यूम लेवल चेंज? वॉल्यूम लेवल चेंज है तो क्यों हुआ वॉल्यूम लेवल चेंज? कैलेंडर का डिफरेंस है या कैपेसिटी का डिफरेंस है या एफिशिएंसी का डिफरेंस है? आ जाओ ऊपर। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कहां से निकालोगे? वॉल्यूम इज सब्सिक्वेंट फिगर, वेरिएंस बोलो ना, क्या करने का? सब्सिक्वेंट माइनस प्रीवियस, सबसे आगे। ORAS, एस मतलब स्टैंडर्ड आवर्स, ए मतलब एक्चुअल, लेकिन नहीं चाहिए मुझे, सबसे फर्स्ट फिगर चाहिए। सबसे फर्स्ट फिगर क्या है? ओरिजिनल बजेटेड आवर्स इनटू व्हाट? स्टैंडर्ड रेट पर आवर। पर आवर समझा करे? कितने बच्चे? क्या नाम है इनके? कैलेंडर, कैपेसिटी एंड efficiency. It's that simple. So you don't have memory stress if you can get data. कैलेंडर में क्या करेंगे आप? सब्सिक्वेंट फिगर। कैलेंडर के लिए पहला क्या था? OR, आर मतलब रिवाइज्ड बजेटेड आवर्स माइनस ओरिजिनल बजेटेड आवर्स, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, इनटू व्हाट? स्टैंडर्ड रेट पर आवर। कैपेसिटी में क्या करेंगे आप? ORAS, ORA, आर एंड ए मतलब AH, आर मतलब रिवाइज बजट आवर्स। आप अगर आपने ऑब्जर्व किया ना, देखो ये कैंसिल होते जाता है। आरबीएच गेट्स कैंसल्ड, ये एज भी कैंसिल होने वाला है। अल्टीमेटली बचेगा क्या तुम्हारा? OBH बचेगा और स्टैंडर्ड आवर्स बचेगा, और उनका डिफरेंस इधर है, इनटू व्हाट? स्टैंडर्ड रेट पर आवर। इफिशियंसी ORAS, SH, AH, standard rate per hour. So if you notice, don't do that. RBH, AH, gone. What remains is SH minus OBH, which is nothing but your volume variance. That is how it tallies. So this basically tells you or gives you insight into why have you incurred more cost or why have you incurred less cost. Overheads absorbed is with reference to output, but fixed overhead don't move with reference to output. So if output goes up, you have a favorable variance, which is nothing but over absorption. नहीं समझा? देखो, overheads get absorbed on what? ये देखो, ये लेजर अकाउंट, कैन यू इमेजिन लेजर अकाउंट? ये overheads absorb हो रहा है किसके अंदर? WIP अकाउंट के अंदर। Overheads are absorbed on what basis? Actual output. है ना? Fixed overhead are also absorbed on actual output. Variable overheads are also absorbed on actual output. Or standard hours. Standard hours are for actual output only. अब प्रॉब्लम क्या है? मैंने फिक्स ओवरहेड का बजट, मतलब जब बजट बनाया था तो कुछ एक्स क्वांटिटी मैंने कंसिडर किया था और उसके हिसाब से मैंने एब्सॉर्प्शन रेट निकाला। मैंने क्वांटिटी कंसिडर किया था 5000 यूनिट्स और उसके हिसाब से एब्सॉर्प्शन रेट निकाला, उसके हिसाब से मैं एब्सॉर्ब कर रहा हूं, लेकिन यूनिट्स हो गए 5000 के जगह पे 9000। इफ नंबर ऑफ यूनिट्स गो अप, व्हाट हैपेंस इज overheads absorbed are much more than overheads incurred. That's why you end up getting over absorption. वही तो उर्दू में बोला था ना, over absorption is nothing but favorable variance. अब बोलेंगे how favorable? If you produce more than what you had budgeted for, incidence of cost per unit comes down. Assuming price level is same. नहीं, मैंने बजट में 1 लाख रुपया लिया था फिक्स ओवरहेड, क्वांटिटी वाज 5000, व्हाट वाज एब्सॉर्प्शन रेट? 20। अज्यूम करो प्राइस लेवल में कुछ चेंज नहीं, 1 लाख जो बजट किया था और एक्चुअल में भी 1 लाख इंकर हुआ। बजट 1 लाख का था, एक्चुअल भी 1 लाख इंकर हुआ, लेकिन क्वांटिटी 5 के जगह पे 9 हो गया।
हमने क्या किया, एब्सॉर्प्शन रेट 20 रुपया था, इंटू 9,000, एब्सॉर्ब हो गया 1,80,000. सो आई डेबिटेड WIP by 1,80,000 and credited overhead by 1,80,000. Obviously, I percentage WIP account debit to overhead. How much? 1,80,000. But overheads incurred on debit side is 1 lakh only na. What is debit side? Overhead incurred. Nothing but actual overheads. What is credit side? Overhead absorbed. Nothing but standard cost. So ये overhead account का जो balancing figure है is nothing but overhead variance. Can be either favorable or adverse. But this account does not tell you reasons of why there is under absorption or why there is a over absorption. It simply tells you. This much is under oblique over absorption. Your result card just tells you how much extra marks you scored than 400 or how much less you scored than the 400. It doesn't tell you why you scored more than 400 or why you scored less than 400. हाँ? सुबह 7 बजे परेशान कर रहे हैं ना, ऐसे ही परेशान करते रहोगे तुम, तब जाके चले सुधरोगे. अभी देखो ना कैसे इजी समझ रहा है तुमको. हाँ, 400 से ज्यादा तुमको आ गए फेवरेबल वेरिएंस, 400 से कम आ गए एडवर्स वेरिएंस. व्हाई? मार्कशीट डजंट टेल यू. मार्कशीट सिंपली टेल्स यू इतना एडवर्स इतना फेवरेबल. व्हाई? यू नीड टू गो डीप इनटू दैट. You might have done less homework, you might have bunked the test, you might have been in relationship, you might have whatever, you might not have taken a bath and that's why your concentration might be less. Forget about it. What I'm trying to say is this account simply tells under oblique over absorption. So I need to deep dive into it. So that deep dive depends on nature of overhead. Are you clear on this? So that deep diving which we did from accounting angle was boring. It was normal and abnormal reason. That was just to value inventory. But below, when we come down in a standard costing, we ask a question whether that overhead is a variable one or a fixed one. That's the first question. If it is a variable one, but the quantity of output is relevant. If it is a fixed one, quantity of output के हिसाब से variable overhead move नहीं होना चाहिए था. Are you clear on this? You heading control ratios. ये overhead related control ratios आते हैं. ये standard costing chapter में है जिसको मालूम नहीं है. Broadly, there are 3 control ratios, but our institute introduced some crazy things recently. 3 कंट्रोल रेशियोज ही आने चाहिए एग्जाम में लॉजिकली स्पीकिंग, बट अपने इंस्टीट्यूट ने 6 कर दिए उसको. बहुत डेडली कर दिया अपने इंस्टीट्यूट ने. पागल बनाएंगे तुमको. कॉन्सेंट्रेट करना. ये 6 के 6 पूछ लिए ना, मतलब कंफ्यूजन होगा तुम्हारा, तो इसलिए अच्छे से करो इसको. दिस इज फ्रॉम नवंबर 22 एग्जामिनेशन. सो अगर कोई खिलाड़ी पुराना है वहां पर ऑनलाइन, तो प्लीज अपडेट योर सेल्फ. मतलब रह सकते हैं. It's okay. Do the analysis of mark sheet. First ratio. First ratio is efficiency ratio. सबसे आसान रेशो. Efficiency ratio. देखो, हमने लेबर चैप्टर में भी किया था. Okay. Oh, again, all these ratios can be done with reference to output or can be done with reference to hours. Right now, I'm explaining you with reference to hours. Output basis पे भी आप ये सारी की सारी चीजें कर सकते हो. कुछ डिफरेंस नहीं होगा. सुन लेना. Efficiency. Simple logic लगाने का. It is a difference between how much time you should have taken and how much time have you taken. है ना? How much time you should have taken मतलब स्टैंडर्ड आवर्स. हाउ मच टाइम यू आर टेकन मतलब एक्चुअल आवर्स. अब मेरे को फॉर्मूला मालूम नहीं है, सिंपल दिमाग में क्रिएट करो. एक काम के लिए 100 घंटे लगने चाहिए थे और तुमने 150 घंटे ले लिए, तो तुम इफिशिएंट हो या इनइफिशिएंट हो? इनइफिशिएंट हो. मतलब आंसर 100 के ऊपर जाना चाहिए, 100 के नीचे आना चाहिए. 100 के नीचे आना चाहिए. 100 के नीचे कब आएगा? जब आप 150 अपन 100 करोगे तब. जब आप 100 अपन 150 करोगे तब. 100 क्या था? स्टैंडर्ड आवर्स. 150 क्या था? एक्चुअल आवर्स. हो गया फॉर्मूला. लिख. या वो क्या, ये मैंने आपको लेबर चैप्टर से पहले से बोल रहा हूं. परसों भी बोला था. ओ कर रहे मतलब इनको अभी कुछ लोगों का ना बिजली जल्दी नहीं
Standard hours, obviously for actual output, not for budgeted output. Huh? Standard hours for actual output divided by actual hours. Obviously actual hours are for actual output, multiplied by 100 just to convert it into percentage. ये हो गया तुम्हारा efficiency ratio. फिर दूसरा होता है कैलेंडर. अभी पहले तीन ही थे, इफिशियंसी रेशो था, कैपेसिटी रेशो था एंड इनका मल्टीप्लीकेशन करके एक एक्टिविटी रेशो था. अब इंस्टीट्यूट बोलती नहीं, हम बहुत सारा चीज रखेंगे. ये इफिशियंसी रेशो. ओके, सिंपल लैंग्वेज में बोलू, इफ दिस इफिशियंसी रेशो इज ग्रेटर देन 100%, योर इफिशियंसी वेरिएंस विल बी फेवरेबल. योर इफिशियंसी वेरिएंस विल बी फेवरेबल. आप बोलेंगे कैसे? इफिशियंसी वेरिएंस में क्या कर रहे थे आप परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, आप रुपीज में एक्सप्रेस कर रहे थे. इट वॉज SH माइनस AH इंटू SR. यहां पर क्या क्या SH अपॉन AH कर रहे हो. सब्सिक्वेंट फिगर डिवाइडेड बाय प्रीवियस फिगर. तो आप अगर भूल भी गए तो ये जो ओ राजा, ये क्या था, ए क्या बोला था उसने? ओके, ORAS, subsequent figure divided by previous figure, you can always get answer of a ratio. ठीक है, कौन सा रेशो आ गया? इफिशियंसी रेशो. दूसरा रेशो कैलेंडर रेशो. ये भी आप वहां से ला सकते हो. सब्सिक्वेंट फिगर अपॉन प्रीवियस फिगर. बोलो, आर्स बेसिस पे कर रहे हो. रिवाइज्ड बजेटेड आर्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल बजेटेड आर्स. रिवाइज्ड बजेटेड आवर्स, इसको आईएमपी मार्क किया क्या तुमने? डिवाइडेड बाय ओरिजिनल बजेटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 100. ओके, आप नंबर ऑफ डेज पे भी कर सकते हो. इसको अगर करना है ना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओरिजिनल आवर्स एंड रिवाइज बजेट आवर्स, यू कैन से एक्चुअल डेज डिवाइडेड बाय बजेटेड डेज. Q, hours per day remain same. Actual days upon budgeted days. ये favorable कब होगा रे? When actual days are more than budgeted days, automatically it will turn out to be favorable because it will be more than 100%. Imagine a situation where actual days are 25, budgeted days are 23. This will be more than 100. तो ये days में करो या hours में करो, answer will not change. तो ये कौन सा रेशो था? ये कैलेंडर वाला हो गया, इफिशियंसी वाला हो गया. है ना? ये दो बहुत आसान थे. अब ये कैपेसिटी में इंस्टीट्यूट ने जो परेशान किया है ना बच्चों को, 4 रेशियोज निकाले. कैपेसिटी का लॉजिकली इट शुड बी एक्चुअल आवर्स अपॉन रिवाइज बजेटेड आवर्स और बजेटेड आवर्स इफ देयर इज नो चेंज ना. इधर तुमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इतना ज्यादा कैपेसिटी कहां से लाया है ढूंढ के भगवान जाने. 4 अलग अलग कैपेसिटी रेशियोज निकाले. कितने? 4. मतलब ऐसे ही, इट्स अ टू मच ऑफ डीप डाइव इनटू दिस. चलो देखो, पहला कैपेसिटी रेशो, स्टैंडर्ड कैपेसिटी रेशो. कान खोल के सुनना. स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो. तुम्हारी कैपेसिटी कितनी तुमने यूज की. स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो. 3 रेशोज है इसमें कैपेसिटी में, 3, 4 नहीं. वो एक्टिविटी रेशो चौथा है. एक्टिविटी रेशो इज नथिंग बट वॉल्यूम वेरिएंस. यू विल अंडरस्टैंड दैट. स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो मतलब क्या होता है? तुम्हारी कैपेसिटी कितनी थी और उसमें से तुमने कितनी कैपेसिटी यूज कर ली. सो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, डिनोमिनेटर शुड बी हाउ मच इज अ कैपेसिटी एंड न्यूमरेटर शुड बी हाउ मच हैव यू यूज्ड आउट ऑफ इट. फॉर्मूला का नाम देखो क्या लिखा है, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो. न्यूमरेटर शुड हैव बीन एक्चुअल आवर्स ना. स्टैंडर्ड कैपेसिटी रेशो, दिस इज बजेटेड आवर्स. कौन सा बोला मैंने? बजेटेड आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्स पॉसिबल बजेटेड आवर्स. अब बोले ये क्या चल रहा है यार? मैक्स पॉसिबल आवर्स इन द बजट. और दिस इज इंस्टीट्यूट. मतलब क्या है? दिस इज टू मच. मतलब
कुछ कर नहीं सकते, है ऐसा। सुन लेना क्या है ये आपको न्यूमेरिकल्स देख के समझेगा, विदाउट न्यूमेरिकल से थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। देखो एक न्यूमेरिकल मैंने करवा के लिया था तुमसे, ये न्यूमेरिकल देखो, 2 मिनट रुको। विदाउट न्यूमेरिकल्स this can trouble, or this is a numerical given in the ICS study material. This is the same question which is there in the ICS study material. It's deadly. God forbid this should not come in the exam. But standard working hours, 8 hours per day of how many? 5 days in a week. 5 days in a week, 8 hours per day. So how many? 40 hours per week. Maximum capacity is 50 एम्प्लॉइज, बट एक्चुअल में काम करने कितना है रे? 40 एम्प्लॉइज। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में प्रिंट किया हुआ क्वेश्चन है एज इट इज। एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड। हाउ कैन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड वर्ड कम इन वन लाइन? एक्चुअल इज एक्चुअल, हाउ इज इट एक्सपेक्टेड? दिस इज हाउ इट इज प्रिंटेड। सो यू शुड, आफ्टर लुकिंग एट द आंसर, आई अंडरस्टूड दैट एक्चुअल वर्ड शुड नॉट बी देयर. So you should remove the actual word. Hours expected to be worked per 4 week, 6,400. कैसे? Take on your calculator. 40 hours per week into 4 weeks. कितना आ गया? 160 per employee. 160 is per employee multiplied by 40 employees. कितना है? 6,400. तो बच्चों, एक्चुअल वर्किंग एज वेल एज बजटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बोथ आर सेम. तुम्हारे पास 50 एम्प्लॉय काम करने की फैक्ट्री में जगह है या मशीन है उतने, लेकिन तुमने बजट में कितने एम्प्लॉइज कंसिडर किए? 40. क्यों? आउटपुट डिमांड नहीं होगा प्रोडक्ट के लिए. ठीक है, देन दिस इज गिवन बाय देम समथिंग. ये बहुत ही डेडली सम है. एक्चुअल आवर्स वर्कड 6,000. स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड फॉर द 4 वीक. व्हाट इज स्टैंडर्ड आवर्स अर्न? एक्चुअल आउटपुट जो प्रोड्यूस किया उसके लिए कितना टाइम लगना चाहिए था. स्टैंडर्ड आवर्स अर्न इज नथिंग बट स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट. इट इज 7,000. फिर बोले ऊपर 8,000 क्या दिया था? वो भी स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड. गॉड नोज फ्रॉम वेयर इट हैज कम अप. सो दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स विथ रेफरेंस टू उसको टोटल नंबर मैक्सिमम कैपेसिटी दिया हो 50 एम्प्लॉइज के हिसाब से. So standard hours for actual output is how much? 7,000. The related period is for 4 weeks. In this period, one additional holiday was given due to national event, whatever. Calculate the ratios. ये जो ratios मैंने अभी लिख के दे रहा हूं तुमको, efficiency ratio, activity ratio, calendar ratio, standard capacity usage ratio, actual capacity usage ratio, actual usage of budgeted capacity. This has to be, मतलब ये 2 रेशो तो आराम से आएंगे आपको. कौन से 2 रेशो? इफिशियंसी आसान है, कैलेंडर आसान है, एक्टिविटी भी आसान है, कैपेसिटी तुमको जान ले लेगा. इसके पहले कहां से कॉपी किया मालूम नहीं मुझे. अब देखो, मैक्सिमम कैपेसिटी इन बजट 50 एम्प्लॉइज थे तो 8,000 बजट, लेकिन तुमने प्लानिंग किया था 40 वर्कर के साथ ही. तो तुम्हारे पास सच में पूछो तो कितने घंटे काम करने की कैपेबिलिटी है? 8,000. लेकिन तुमने प्लानिंग में ही कितने आवर्स कंसिडर किए? 6,400, बिकॉज यू प्लान विथ रेफरेंस टू 40 एम्प्लॉइज. एक्चुअल इज 6,000. Actual is 6,000 hours given in the question. Standard hours, whatever output is produced in 6,000 hours, for that how much time should have been taken? 7,000. ये कहां पे लिया? 7,000 क्वेश्चन में दिया है. Budgeted number of days are 20. कैसे? 4 weeks in 5 days a week. Actual number of days are 19. Are you clear with reference to that? तो पहला रेशियो देखो, इफिशियंसी रेशियो, दिमाग चलेगा इधर. इफिशियंसी इज व्हाट? स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स. स्टैंडर्ड कितने थे? 7,000. एक्चुअल कितने? 6,000. इजी है क्या? कौन सा इजी लिख रहा? इफिशियंसी. कैलेंडर एक्टिविटी रेशियो बाद में करते हैं, उसको पेंडिंग रखो. एक्टिविटी रेशियो इज नथिंग बट अ वॉल्यूम वेरिएंस. एक्टिविटी रेशियो इज नथिंग बट अ वॉल्यूम वेरिएंस. सो देखो, एक्टिविटी वेरिएंस करना है तुमको ना. मैंने क्या बोला? वॉल्यूम वेरिएंस इज सब्सिक्वेंट फिगर स्टैंडर्ड आवर्स divided by original budgeted hours. Standard hours upon original budgeted hours.
तीन चीजें बहुत आसान है, कैलेंडर, इफिशियंसी एंड व्हाट, एक्टिविटी। एक कैपेसिटी के लिए इनके दिमाग में क्या गया भगवान जाने यार। Subsequent figure divided by previous figure in that our chart is nothing, and into 100 is nothing but a ratio. Keep calm. Activity ratio आया तुमका 109। अगर ये 100 के ऊपर रेशो आता है ना कोई भी, तो वो वेरिएंस फेवरेबल है। कैलेंडर रेशो फेवरेबल निकलेगा यहां पर, सॉरी एडवर्स निकलेगा। क्यों एडवर्स निकलेगा? तुमने बजट में प्लान किया था 20 डेज का, 19 डेज का काम हुआ। सब्सिक्वेंट फिगर कैलेंडर के लिए क्या था? ORAS, R, revised budgeted hours, subsequent figure divided by original budgeted hours। अब यहां पे आवर्स की जगह पे उन्होंने क्या किया है? डेज में किया है, तो आंसर विल बी सेम 95%। अब देखो ये तीन डेडली है। कौन से? स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो। इसका मतलब क्या है मालूम है? बजटेड आवर्स, तुमने कितना बजट प्लान किया था और तुम्हारे पास मैक्स कितना स्कोप था। मतलब आउट ऑफ 8000 आवर्स यू प्लान फॉर ओनली 6400 आवर्स। सो अब इसका नाम जो है ना, वो कहां से लाया है? स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो। ये वेरिएंस में आता ही नहीं, कोई भी वेरिएंस में नहीं है। दिस इज रेशो ऑफ व्हाट यू बजटेड डिवाइडेड बाय व्हाट यू कुड हैव बजटेड। यू कुड हैव बजटेड हाउ मच? 8000। हाउ मच यू बजटेड? 6400। इसका कोई वेरिएंस नहीं है, इसका कोई वेरिएंस नहीं है, इसलिए मैंने क्रॉस किया उसको। एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशो, एक्चुअल आवर्स वर्कड डिवाइडेड बाय व्हाट मैक्स पॉसिबल आवर्स यू कुड हैव वर्कड। तो बेसिकली ये दो अतरंगी चीजें ऐड की इन्होंने, विथ रेफरेंस टू नॉट बजटेड आवर्स, मैक्स पॉसिबल बजटेड आवर्स। और नाम ऐसे दे दिए उनके अतरंगी नाम। क्या नाम है? कैपेसिटी, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशो। Both are with reference to which thing? Max possible hours that could have been budgeted with your entire capacity, not what you actually budgeted. You actually budgeted how much? 6400. So you budgeted 80% of maximum possible and you utilized 70% of maximum possible. But logically जो capacity का utilization check करना चाहिए वो ये ले, 6 नंबर करेक्ट है। 6 नंबर हमने वेरिएंस में लिया था। 6 नंबर क्या था? एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी। व्हाई द हेल आर यू डिवाइडिंग 6000 बाय 8000? तुमने प्लानिंग ही 6400 का किया था ना। सो यू से 6000 एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स। बच्चों दिस इज नथिंग बट वेरिएंस दैट वी डिड। देखो कैपेसिटी वेरिएंस क्या था? AH अपॉन PH, रिवाइज बजटेड आवर्स लेना चाहिए आपने। यू शुड टेक अ रिवाइज बजटेड आवर्स। 6400 नहीं थे रिवाइज बजट आवर्स। रिवाइज बजट आवर्स, टेक ऑन ए कैलकुलेटर। पर डे 40 आवर्स, 8 आवर्स, सॉरी पर डे नहीं, 8 आवर्स इंटू 40 एम्प्लॉइज, माय मिस्टेक। 8 आवर्स इंटू 40 एम्प्लॉइज 320 इंटू 20 डेज 6400. So 6400 was original budgeted hours. So these people are calculating the last ratio also with reference to original budget hours, whereas they should have worked it out with reference to revised budget hours. But that's okay. At least budget hours तो ले रहे हैं। अब देखो याद कैसे रखने का इसको। Simple. You have to find out a technique to remember it. There is no alternative. पहले 3 रेशियोज तो आप आराम से कर सकते हो। इफिशियंसी रेशियो समझा? It is nothing but subsequent figure upon previous figure, standard hours upon actual hours into 100. आउटपुट बेसिस पे भी सेम चीज है। देन नेक्स्ट वन कैलेंडर रेशियो, उसके लिए क्या किया हमने? रिवाइज बजट आवर्स अपॉन ओरिजिनल बजट आवर्स, और ये डेज में करो आप। और फिर हम ये अतरंगी चीजें चालू करते हैं। एक्टिविटी रेशियो तो बहुत आसान है। एक्टिविटी रेशियो क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल बजटेड आवर्स। वो 6400 लिया था उन्होंने, देखो 6400 लिया था ना उधर। 6400 किधर गया एक्टिविटी के लिए? देखो 6400। अब दिक्कत कहां पर है? ये स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, दिस इज बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्स पॉसिबल आवर्स इन बजट इनटू 100। ये दोनों अतरंगी चीज है। मैंने नंबरिंग में गड़बड़ किया। 3 एंड दिस इज 4। और कौन सा एक नाम अतरंगी नाम दे दिया बच्चों उन्होंने?
एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशो, ये दो। अभी देखो ना, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज, अरे स्टैंडर्ड है ही नहीं तेरे फॉर्मूला में। एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशो, इधर क्या लेंगे हम? एक्चुअल कैपेसिटी बोलो तो हाँ, एटलीस्ट इधर नाम में कुछ तो है, एक्चुअल आवर्स। इधर स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो वाज आउट ऑफ योर मैक्सिमम पॉसिबल, हाउ मच डिड यू प्लान? इट हैज नथिंग टू डू विद द स्टैंडर्ड। एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय व्हाट? ये डिनोमिनेटर सेम है, मैक्स पॉसिबल आवर्स इनटू व्हाट? 100। और अब सच वाला कैपेसिटी रेशो, उसको बोलते हैं ये लोग एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी। आप अगर पुराने मॉड्यूल या पुराने एग्जाम का क्वेश्चंस खोल के देखोगे ना, सिर्फ तीन ही थे, इफिशियंसी, कैपेसिटी एंड एक्टिविटी। तीनों लॉजिकल है। इतना ज्यादा फालतू का एनालिसिस करना इज लाइक टू मच ऑफ एनालिसिस। Like in Indian media, we do too much of analysis of Hindu-Muslim issues than actual Hindus and Muslims do it. So, actual usage of what? Budgeted capacity. ये आपका capacity ratio है। Capacity ratio क्या था बच्चों? देखो, actual hours upon revised budget hours था ना, revised नहीं लेने का, original लेने का सिर्फ। क्या लेने का उधर? Actual hours divided by बोलो OBH, original budgeted hours into 100, और फाइनली एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो इज सिंपल, ORAS। S मतलब क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स। S मतलब स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल बजटेड आवर्स। कुछ कर नहीं सकते बच्चों इसको, ये ऐसा है मतलब है। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? एक नया कॉन्सेप्ट, मैक्स पॉसिबल आवर्स, और उसके हिसाब से दो रेशियो निकाले। कौन से दो? स्टैंडर्ड कैपेसिटी रेशियो एंड एक्चुअल यूसेज कैपेसिटी रेशियो। ये दो चीजें इन्होंने किसके हिसाब से निकाली है? मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स के हिसाब से निकाली है। देखो, अब इनको याद रखने के लिए क्या है? चार चीजें आसान है। कैसे याद रखेंगे हम? अपना नॉर्मल टेबल बनाएंगे हम, OBH, ओरिजिनल बजटेड आवर्स। ओके, अब इन्होंने एक चीज इंट्रोड्यूस की, तो मैं लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा जगह रखता हूं, मैक्स पॉसिबल आवर्स, MPH, मैक्स पॉसिबल आवर्स, उसके लिए जगह रखता हूं। बट अपना पहले चार चीज वाला चीज देखो, जो अपने को वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करने में आसान करता है यार। मतलब यू नीड टू फाइंड, सी ऐसा नहीं कि वो इंस्टीट्यूट जो कर रही है वो गलत है, नाम तो सही दे दो ना उसको, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, एंड दैट इज नॉट नथिंग टू डू विद द स्टैंडर्ड। OBH, फिर क्या करेंगे हम? RBH, OBH, RBH, ORAS, एक्चुअल आवर्स, एंड ये क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स। ये चार समझ गए तुमको? इनका रेशियो क्या होता है? कैलेंडर रेशियो होता है। कैलेंडर का फॉर्मूला क्या है? RBH अपॉन OBH। बहुत आसान है। फिर ये रहता है कैपेसिटी, बट इनके लिए ये कैपेसिटी नहीं है, इनके लिए ये कैपेसिटी नहीं है, तो इसको हटा देंगे हम। ये अपना हमने इफिशियंसी बोला था, इसको भी हमने इफिशियंसी रेशियो बोला, SH ऑन AH। ये सब कुछ यहां तक लॉजिकल था, ये दो रेशियो तो लॉजिकल है। अब क्या है? एक्टिविटी रेशियो भी लॉजिकल है, विच इज नथिंग बट वॉल्यूम रेशियो। ये वॉल्यूम वेरिएंस था ना, वॉल्यूम इज ओवरऑल एक्टिविटी, और एक्टिविटी रेशियो, ये सब रेशियोज है। व्हेन यू डू डिवाइड बाय यू गेट अ रेशियो, व्हेन यू डू माइनस सब्सिक्वेंट फिगर माइनस प्रीवियस फिगर इनटू रेट पर आर, यू गेट अ वेरिएंस। एक्टिविटी रेशियो बोलो कैसे आएगा? स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय OBH इंटू ऑब्वियसली 100 इंटू 100। खुश? तो ये तीन चीजें तो आप आराम से ला सकते हो। अब और कितनी चीज लानी है? तीन कैपेसिटी रेशियो आपने इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किए।
वो 3 रेशियोज करने के लिए एक हमने नया यहां पर आवर्स लिखना है, एमपीएच, मैक्स पॉसिबल आवर्स। तुम्हारी पूरी कैपेसिटी कंसिडर करके जो आवर्स निकालेंगे हम उसको क्या बोलेंगे, मैक्स पॉसिबल आवर्स। पहले हम क्या करेंगे, हाउ मच इज ओबीएच अपॉन एमपीएच, ओबीएच अपॉन एमपीएच, उसको क्या नाम दिया था उन्होंने, स्टैंडर्ड कैपेसिटी रेशो। नाम में कुछ भी नहीं है, मुझे मत पूछना, मुझे भी नहीं क्लियर है। स्टैंडर्ड कैपेसिटी रेशो मतलब तुमको चैलेंज देता हूं, चैट जीपीटी को तुम पूछ के देखो या किसी को भी पूछ के देखो ना, गलत आंसर दिया ना, क्यों, अरे जाने दो। ओबीएच, वो चैट जीपीटी बाकी सब कुछ तेल लगने गए, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में लिखा ना, वो बाइबल, भगवत गीता, कुरान सब कुछ है। ऐसे ही भगवान है तुम्हारे लिए, ये भगवान को जल्दी से जल्दी बदलने की कोशिश करो। आई विश। ये पहला रेशो आया, स्टैंडर्ड कैपेसिटी रेशो। फिर हमने क्या किया, एक्चुअल आवर्स विथ रेफरेंस टू मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स को हमने 2 बार डिनोमिनेटर में लिया, ये एक्चुअल आवर्स अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल को इन्होंने क्या बोला था, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशो। नाम तो ऐसे ऐसे ढूंढ के दिए ना, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशो, ठीक है। एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। आर यू क्लियर विद दिस? और तीसरा कैपेसिटी रेशो क्या है, एक्चुअल आवर्स। अभी वो लिखने के लिए जगह ही नहीं बचा मेरे पास, एक्चुअल अपॉन ओरिजिनल बजट आवर्स। तो एक्चुअल के हिसाब से दो रेशो है, ये अभी कैसे लिखो यहां पर, इसको क्या नाम दिया था, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशो। फुल फॉर्म लिखना, ये है एक रेशो, एएच अपॉन ओबीएच। इसको क्या नाम देंगे हम, एक्चुअल यूसेज, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी। इसको थोड़ा मेरे दिमाग में भी एक अच्छा आइडिया है, नहीं नहीं नहीं, एक कैपेसिटी रेशियोज के लिए अलग ही चार्ट बनाओ। देखो तो ये हो गया ना, और एक बार रिवाइज करते हैं इसको, लिख के हो गया, एमपीएच, ओबीएच, फिर आरबीएच, फिर एच, फिर एसएच। ओ आर एस है, उसमें एम ऐड कर दिया। अब ओबीएच अपॉन एमपीएच इज 1 रेशो, फिर एच अपॉन एमपीएच इज अनदर रेशो, एंड एच अपॉन ओबीएच इज अनदर रेशो। कैपेसिटी, इनके नाम अतरंगी है सिर्फ, एक्चुअल यूसेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी। देखो इतना टफ चीज था, आसान करके दिया तुमको। और इसका नाम क्या था, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज। नाम ही मुश्किल है यार, क्वेश्चन में आएंगे तो 6 के 6 आएंगे, तुम नाम देख के उधर से मैच करने का। एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशो, सब्सिक्वेंट फिगर अपॉन प्रीवियस फिगर। और ये क्या था, इसका नाम था स्टैंडर्ड, जिसमें स्टैंडर्ड है ही नहीं, इसका नाम क्या था, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो। अब क्या होगा मालूम है क्या, क्वेश्चन अगर पुराने जमाने से कॉपी हो, पुराने जमाने में इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में ऐसे इतना डिटेल था ही नहीं, सिर्फ कैपेसिटी रेशो था। तो पुराने जमाने में आईसीआई यूज्ड टू डू कैपेसिटी एज एच अपॉन ओबीएच। तो एक ही करते थे वो, एच अपॉन ओबीएच वाला था ना नीचे वाला, एक ही रेशो। अगर जस्ट कैपेसिटी पूछा, एक करके छोड़ देने का, एमपीएच लेने का ही नहीं। ये एमपीएच उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया मॉड्यूल में। आर यू क्लियर विद दिस? अब यही चीज आउटपुट पे भी कर सकते हैं क्या हम? हाँ, क्या है, सेम आउटपुट पे क्या करें, ओ आर ए एस के जगह पे ओ आर ऐसे लिखने का है तुमको, उसमें फर्क नहीं पड़ता, और एमपीएच नहीं आएगा। चलो आउटपुट बेसिक आऊं, लास्ट वन देखो, कंट्रोल रेशोज बेस्ड ऑन आउटपुट, कंट्रोल रेशोज बेस्ड ऑन आउटपुट। हम 2 अलग अलग चार्ट बनाएंगे, कैपेसिटी के लिए अलग चार्ट बनाते और ये बाकी रेशोज के लिए अलग चार्ट।
पहले क्या लिखेंगे हम? मैक्स पॉसिबल आउटपुट, फिर ओरिजिनल बजटेड आउटपुट, फिर रिवाइज्ड बजटेड आउटपुट, फिर स्टैंडर्ड आउटपुट, फिर एक्चुअल आउटपुट। इस चार्ट में मैं 3 लॉजिकल रेशियो निकालूंगा। कैलेंडर, ये आ गया, ये मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ इधर ऐसा लिख रहा है कैलेंडर। फॉर्मूला क्या है? सब्सिक्वेंट फिगर डिवाइडेड बाय प्रीवियस फिगर। कैलेंडर समझा क्या रहे बच्चों? सीक्वेंस नॉर्मली क्या रहता है? कैलेंडर, फिर कैपेसिटी और फिर इफिशियंसी रहता है। ये लेने का आपका इफिशियंसी, यह आया तुम्हारा इफिशियंसी, ORSA। उसके नीचे क्या आता है? कैलेंडर, कैपेसिटी, इफिशियंसी। उसको भी बच्चे ने कुछ तो टेक्निक बनाया था, CCE को, कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कुछ भी बनाओ। हाँ, ये आएगा। ये क्या आएगा तुम्हारा? एक्टिविटी रेशियो। आर यू क्लियर विद दिस? इसमें कैपेसिटी लिया क्या मैंने? कैपेसिटी लिया क्या? ये 3 आसान है। अब इसको मैं वापस कॉपी करूंगा वो टेबल को, तुम नहीं कर सकते ना। अब हम क्या करेंगे, उसमें ये नहीं आएगा। अभी कैपेसिटी के 3 आइटम लिखता हूं मैं। कैपेसिटी के 3 आइटम लिखने ना, आपको क्या करना है? ओरिजिनल बजटेड आउटपुट विथ रेफरेंस टू मैक्स, ये एक आएगा। इसका नाम क्या रखेंगे? स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो। फिर दूसरा क्या था बच्चों? एक्चुअल। हाँ, अभी आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट नहीं लेने का, यू शुड टेक अ स्टैंडर्ड आउटपुट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड टेक व्हाट? स्टैंडर्ड आउटपुट। आउटपुट बेसिस पे जब ये फॉर्मूला आता है, इट इज नॉट एक्चुअल आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट इज फॉर एक्चुअल आवर्स ओनली। ये कौन सा रेशो आया बच्चों तुम्हारा? स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशो। डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज। फिर ये इसका नाम क्या दिया था? एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज। और फिर अपना नॉर्मल वेरिएंस के जैसे ये वाले, स्टैंडर्ड अपॉन ओरिजिनल बजटेड। इसका नाम क्या दिया था? एक्चुअल यूसेज। एक्चुअल यूसेज फॉर बजटेड कैपेसिटी। तो ये ओवरहेड रिलेटेड सारी चीजें हो गई। तो वी आर डन विथ ओवरहेड चैप्टर। So we are done with cost sheet, we are done with material, we are done with the labor, we are done with overheads, absorption costing, and overhead relating to standard costing. There is one more thing of overhead called as what? Activity based costing. Right? We'll do that. Thank you. Tomorrow we'll do some new chapter.